नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी। सेशन रोल ऑफ लोक सेवा इन डेवलपिंग सोसाइटीज़ और रोल ऑफ सिविल सर्विस इन द डेवलपिंग सोसाइटीज़। ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। प्रोग्राम BA B.Ed फर्स्ट सेम। कोर्स एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, टुडे our topic on role of lok seva or civil service. Public services play a very important role in developing societies like India. It has the following functions. First is policy making. The task of political executive is policy formulation and policy formulation, but the role of public servants is starting to be active in this by providing information in policy formulation. They help and advise the matrix. Political executives are non-professionals, so they cannot understand the intricacies of policies and therefore have to rely on the expert advice of professional public servants. Second, policy implications. Implications of the policies decided by the political executive is the most important and basic functions of public service. Public servants implement laws and policies to achieve welfare state goals, social equality, economic development, etc. Third, semi-legislative work. This semi-legislative work is done by public servants due to some time contains work, pressure and increasing complexity of lawmaking. The legislature outlines the laws and delegates the authority to prepare its details. In this way, public servants undertake the constructions by laws, rules and regulations within the limits of the basic law enacted by the legislature. Give methods formation is also called executive method formation or subordinate method formation. Fourth, administrative semi-judicial work. This semi-judicial work is done by public servants. Public servants settle disputes between the state and citizens. For the work, administrative tribunals are set up with judge public servants, income tax appellate tribunal, industrial tribunal, rent tribunal and railway rate tribunal, etc. are some examples of such tribunals in India. These tribunals operate outside the normal court system.
Next is coordination. Coordinating between the various units of the organization is the main duty of the main executive. In the process of coordination, it is seen that there should be a feeling of cooperation between different units and there should not be duplication of tasks. Conflict or differences arising in lower levels are also resolved by the main executive. And sixth point is budgeting. Money is required to fulfill administrative obligations. For this, the executive prepares the budget and presents to the administrator. It is executed after approval by the administrator. The budget is prepared only after assessing the entire resources of the state. After the budget is passed, funds are distributed among the states and various departments as per the requirement. This session prepared digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you have any query, please comment box. I will sort it. Thanks. चलिए अब कुछ हिंदी में बात करते हैं। लोक सेवा का विकासशील समाजों में भूमिका, आज का हमारा ये टॉपिक है। रोल इन सिविल सर्विस इन द डेवलपिंग सोसाइटी। भारत जैसे विकासशील समाजों में लोक सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इनके निम्नलिखित कार्य हैं, जिसमें सबसे पहला है नीति निर्माण संबंधी। देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य है नीति निर्माण और नीतियां तय करना, लेकिन इसमें लोक सेवकों की भूमिका अधिक रहती है। नीति निर्माण में सूचना उपलब्ध कराकर वे मंत्रियों की सहायता करते हैं और उनको सलाह देते हैं। राजनीतिक कार्यपालक गैर पेशेवर होते हैं, अतः वे नीतियों की जटिलताओं को समझ नहीं सकते हैं और इसलिए उनको पेशेवर लोक सेवकों की विशेष सलाह पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं ये ज़्यादा जानते हैं, प्रशिक्षण लेके आते हैं इसलिए। अगला है नीति क्रियान्वयन। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा तय की हुई नीतियों का क्रियान्वयन लोक सेवा का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों, सामाजिक समानता, आर्थिक विकास इत्यादि भारत में संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार इनको प्राप्त करने के लिए लोक सेवक कानूनों और नीतियों को लागू करते हैं। अगला है प्रदत्त नीति विधि निर्माण, जिसको डेलीगेटेड लॉ भी कहते हैं। उससे इस अर्धविधायी कार्य को लोक सेवकों द्वारा तय किया जाता है। देखिए, वैसे तो क्या है, कानून बनाने का काम किसका है? संसद का, व्यवस्थापिका का, लेजिस्लेचर का, है ना। परंतु उनसे कुछ काम इनके पास आ जाता है, तो उनके द्वारा ही कुछ सब नियम बनाते हैं, ठीक है, सब रूल्स बनाते हैं, इसलिए इनको हम अर्धविधायी काम बोल रहे हैं। तो समय की कमी, काम के दबाव और विधि निर्माण की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेचर, कानूनों की रूपरेखा तैयार करती है और इसके विवरण तैयार करने का अधिकार कार्यपालिका को दे देती है। इस प्रकार विधायिका द्वारा अधिनियमित मूल कानून की सीमा में उपनियम, नियम आदि का निर्माण लोक सेवक करते हैं। अब अगला है प्रशासनिक अर्ध न्यायिक कार्य। इस अर्ध न्यायिक कार्य को लोक सेवकों द्वारा किया जाता है। राज्यों और नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा लोक सेवक करते हैं। इस कार्य के लिए न्यायाधीश लोक सेवकों के साथ प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करते हैं। भारत में आयकर अपील अधिकरण, औद्योगिक अधिकरण, किराया अधिकरण, रेलवे दर अधिकरण इत्यादि, ये कुछ इस प्रकार के अधिकरण के उदाहरण हैं। अगला है समन्वय संबंधी कोऑर्डिनेशन। संगठन की विभिन्न इकाइयों के मध्य समन्वय स्थापित करना मुख्य कार्यपालिका का कार्य होता है।
समन्वय की प्रक्रिया में यह देखा जाता है कि विभिन्न इकाइयों के मध्य सहयोग की भावना होनी चाहिए और कार्यों का दोहराव न हो, है ना, डुप्लीकेशन न हो। और इसलिए जो कार्यपालिका काम है वो कौन करता है? लोक सेवक, लोक सेवाएं। ठीक है। अगला है बजट निर्माण संबंधी, बजटिंग, उसको लेकर इनकी भूमिका। प्रशासनिक दायित्वों की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए कार्यपालिका बजट तैयार करके व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत करती है। व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद इसे क्रियान्वित किया जाता है। राज्य के संपूर्ण संसाधनों का आकलन करने के बाद ही बजट तैयार किया जाता है। आज के लिए इतना ही। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।